Students, start solving the questions. First is this. There is a cell of EMF 20 volt and it gives a balancing length of 40 centimeter. So you're measuring the potential on a potentiometer. There is another cell and it is giving a balancing length of 52 centimeter. And find its EMF. These are questions from potentiometer. In the second one, there is a open circuit balancing length for a cell with external resistance of 7.5 ohm is 85 centimeter. So the circuit is like this. This is the external resistance and this is the internal resistance. When the circuit is open, the balancing length is 85 centimeter. But when the switch is closed, that means closed circuit, balancing length becomes 75 centimeter. Then you have to find the internal resistance of the cell. What's the answer for the first one? Anyone? Sir, 26 volt. 26. So EMF is directly proportional to the length of the wire. Potential gradient will remain the same. So we can calculate potential gradient as 20 volt per 40 centimeter. For the second case, T2, it will be K times 52 centimeter. K is 20 volt per 40 centimeter into 52 centimeter. That will be 26 volt. 26 volt is correct. What's the answer for question number 2? Anyone got the answer for question number 2? So I got 1 ohm. 1 ohm seems correct. The formula for resistance is small r, L1 by L2 minus 1. L1 is for R is the, sorry, this will be small r, this will be capital R. This is the formula that we derived yesterday. The internal resistance is equal to 1, 7.5 times. L1 is 85, that is open circuit balancing length divided by closed circuit balancing length, that is 75 minus 1. So that will be 7.5 into 10 by 75. That will give you 1 ohm. Okay, this whole thing will be connected to the potentiometer with the help of a galvanometer.
And this is the length that we are measuring from here. When the circuit is open, this will be L1. When the circuit is closed, this will be L2. What's the answer for question number 3? E1 by E2 will be 3:4. 3:4. The EMF is proportional to the balancing length. So 42 by 56, that will be 3:4. The next case, AB is the potentiometer wire. And the resistance of the potentiometer wire is 95 ohms. There is another resistance of 5 ohm here. External battery is connected, whose EMF is 50 volt. You have to calculate the potential gradient. The potentiometer wire does has resistance. What's the potential gradient here? You want to calculate potential gradient, you need to calculate potential across AB divided by length of AB. AB के across potential calculate करने के लिए you need to find the current across it. So total current will be total voltage upon total resistance. Voltage is 50 volt. Your voltage is 50 volt. And total resistance will be 95 plus 5. 95 is potentiometer wire का resistance. So current will be half ampere. Potential across AB will be half into resistance of AB. That will be 95 by 2. So 95 by 2 divided by 1000 centimeter. So potential gradient will be 95 by 2000 centimeter. 95 volt per 2000 centimeter. You can either simplify or you can leave it like that. Now an external cell is connected with internal resistance R1. If AC is 440 centimeter, then find the value of EMF of this cell. The balancing length is given AC 440 centimeter. So we can write E1 as potential gradient into the length of AC. Potential gradient is 95 by 2000 volt per centimeter into 440 centimeter.
Is it coming 20.9 volt? Yes, sir. Okay. Now we're taking the same circuit. Connecting it to E1 and internal resistance R1. But there is a known resistance again here. This is 10 ohm. And it gives you a new balancing length. Call it AD. Length of AD is given as 400 centimeter. Then find internal resistance of the cell. Find internal resistance R1. Tell me once your answer comes. What's the value of internal resistance? This is related to the previous question. Even R1, even you have already calculated. Previous case balancing length was 440 centimeter. Now it has reduced because the current inside the circuit, the current in this loop. Current in the loop will cause the potential difference across the terminals of the battery to be reduced. Because now potential is not E1, it is E1 minus IR. Anyone got the value? Formula is this: R equals to capital R, L1 by L2 minus 1. Capital R is 10 ohm, L1 was 440, L2 is 400. Just like you use the is to solve this previous question. So R will come out to be 1 ohm. Any questions on this?
Okay. In the next case, you have to find current in each resistor in the following question. Solve all these questions. I'll be back in 2 minutes. First one, how many of you solved the first one? Anyone got the answer for the first one? Five. 5 in the whole circuit? Yes. Okay. So how did you solve it? Reduce First I करके calculate reduce किया इसको? मतलब Yeah. रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला Okay. इज इक्वल टू Okay. So for this, to solve this, first I'll reduce this. 6 और 3 parallel में है तो equivalent will be 2 ohm. 4 तो 4 ही रहेगा. 12 और 6 parallel में तो equivalent will be 4 ohm. So equivalent, the total equivalent will be 4 plus 4 plus 2. These are in series. So that is 10 ohm. So current will be I is equal to V upon R. So current in this one will be 50 upon the resistance 10. That is 5 ampere. तो इक्विवेलेंट के क्रॉस जितना होता है उतना ही सीरीज के क्रॉस होते हैं. So 4 ohm, so the battery is giving us 5 ohm, 5 ampere. So 4 ohm के क्रॉस जो करंट होगा that will be 5 ampere. But यहाँ पे भी यहाँ से 5 ampere आएगा, यहाँ से 5 ampere आएगा. But here there will be division of 5 ampere. The question was to find the resistance in each of the cells, each of the resistor. So let us call this I1 and let us call this I2. Call this as I3, I4. I1 और I2 से करंट कितना आएगा? Can you find that out? Sir, will it be total voltage upon individual resistance? No, that is not correct. We have to find out what is the information that we have here. So ये 6 ohm है, ये 3 ohm है. अगर इधर से करंट आ रहा है 5 ohm, 5 एम्पियर, तो कैसे होगा डिवीजन? यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है. तो दो रिलेशंस तो हमें पता है यहाँ पे कि किरचॉफ जंक्शन रूल यूज करना है. किरचॉफ जंक्शन रूल यूज करेंगे तो I1 plus I2 विल बी 5 एम्पियर. कोई भी नया थ्योरी या नया रूल नहीं लाना है खुद से. इंट्यूशन पे वर्क नहीं करना है. यहाँ पे जो रूल्स मिले हैं उनको अप्लाई करना है. So here I1 plus I2 will be 5 ampere. And another thing we can apply is the Kirchhoff's loop law. Loop law can be applied. Suppose I have taken this point as P. तो मैं लूप में घूम सकता हूँ. So अगर मैंने पॉइंट P से स्टार्ट किया तो VP यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो VP minus 6 I1.
फिर यहाँ के करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जैसे इधर P से स्टार्ट करके घूम के वापस इधर आ रहे हैं। ड्रॉ इट लाइक दिस, P से स्टार्ट किया, घूम के वापस P पर आ रहे हैं। सो -651 बिकॉज करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन करंट के ऑपोजिट में जाएंगे तो इट विल बी +3I2। वेयर डू वी रीच अगेन? VP, VP कैंसल आउट हो गया, वी गेट 6I1 इक्वल्स टू 3I2। दो इक्वेशंस, दो अननोन, ये सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से I1 I2 आ जाएगा। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द लूप लॉ। सिमिलरली I3 I4 के लिए सॉल्व करना है एंड देन टेल विद द वैल्यूज। ये वाला तो 4 एम्पियर के अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस जो करंट है दैट इज 5 एम्पियर। तो ये फिगर आउट हो गया, I1 I2 I3 I4 ये कितना आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सिंपल मेथड्स ही है, पहले रिड्यूस किया, इंडिविजुअल पे रिजल्टेंट पे करंट फाइंड आउट किया, फिर एक्सपैंड किया तो सीरीज और सीरीज के इक्विवेलेंट पे सेम करंट होता है, बट पैरेलल में करंट का 5 डिवीजन बाई होता है। हाँ, 5/6 और ये रहेगा 5/3। 5/6 और 5/3 करेक्ट लग रहा है। I1 5/6 आ रहा है। I1 5/6 लग रहा है और I2 5/3। इज दिस करेक्ट? पूरा इतना बताया था क्या? यस सर। मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ यहाँ पे। एनी अदर स्टूडेंट? ऋषित I1 कितना आ रहा है? मेहुल I1 I2 कितना आ रहा है? सर कैलकुलेट नहीं किया पर सर जब हमने व्हीटस्टोन सॉल्व किया था उसमें जब उसको रिजॉल्व किया था दो पैरेलल रेजिस्टर्स में वैसे ही किया था टोटल वोल्टेज अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज अपॉन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे तो फिर मेरे को बिल्कुल अलग आ रहा है, वो 8.3 आ रहा है। तो 8.3 इज रॉन्ग। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि जो टर्मिनल्स थे रेजिस्टेंस के, वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे बैटरी के, तो पोटेंशियल एक्चुअली में 50 वोल्ट था, बट यहाँ पे पोटेंशियल एक्चुअली में 50 वोल्ट नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज दैट। तो इसलिए ये मेथड यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स लूप लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों यूज करके तब निकालना पड़ेगा। अब पूरा I1 I2 चेक किया कितना आ रहा है? दो सर इक्वेशंस, I1 इज इक्वल टू हाफ। I1 हाफ आ रहा है, हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, I1 इज इक्वल टू हाफ I2। हाँ वो तो करेक्ट है, बट I1 I2 में कितना आ रहा है? I1 प्लस I2 5 एम्पियर है। 1 and 2। 1 and 2 कैसे आ सकते हैं?
दो इक्वेशन से दो अननोन से ये सॉल्व करने हैं। वन और टू मिला के 5 एम्पियर थोड़ी होता है। 1 + 2 = 5। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ नहीं से सर, सॉरी, 4 and 1 होगा। डोंट स्टॉप गेसिंग इट। दो इक्वेशन से दो अननोन से सॉल्व करने हैं। सर वैसे कि I2 = 2 times I1। तो फिर तो 1 and 4 आ रहा है। 1 and 4, 4 1 का ट्वाइस है। कम ऑन, यहाँ पे I2 = 2I1 आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। और इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर दूंगा तो क्या रिलेशन आ जाएगा? सर I2 10/3 आ रहा है। हाँ ये करेक्ट है। तो I1 + 2I1 आ जाएगा 5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3 एम्पियर। दो इक्वेशंस दो अननोन ऐसे तो सॉल्व करते हैं। एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे में। मेहुल क्लियर हुआ? यस सर, सॉरी। ठीक है, फिर ये वाला फाइंड आउट करना है। 12 और 6 ओम है, 12 ओम और 6 ओम है, और I3 और I4 है। आई ड्रॉ द सर्किट हियर। गेस नहीं करना है, दो इक्वेशंस है, मैथ्स है, मैथमेटिकल टूल्स हैं, यूज दैट टू फाइंड। तो इधर से 5 एम्पियर ही आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर कहीं से जा नहीं सकता। सो 5 एम्पियर आ रहा है। ऊपर वाले में I3 करंट है, नीचे वाले में I4 करंट लिखा हुआ है। Of course, the naming doesn't matter, but you have to calculate the value of current passing through 12 ohm and 6 ohm. अच्छा, Mehul, tell me what should I write? जंक्शन रूल के हिसाब से क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ से, अगर P पे जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सर VP - 12 + 6 will be equal to VP। किरचॉफ्स जंक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं। जंक्शन रूल मतलब करंट को बैलेंस करते हैं। दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। आने वाला करंट कितना है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। जाने वाला करंट इज 5 एम्पियर itself। I3 + I4। जाने वाला करंट है, P से अवे मूव कर रहा है I3, और P से अवे मूव कर रहा है I4। तो ये जाने वाला करंट हो गया, और आने वाला करंट इज 5 एम्पियर। सो I3 + I4 आई कैन राइट 5 एम्पियर। देन किरचॉफ सेकंड लॉ, अगर P से स्टार्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? टेल मी। VP और VP पहला -12। -12 सर्किट एलिमेंट आ रहा है 12 एम्पियर का रेजिस्टेंस। करंट के and plus डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, बढ़ता है रेजिस्टेंस के क्रॉस। -12 -12 क्या? बस 12? -12 -12 + 6 ohm। सब भूल गए। सॉरी 12 into I1। 12 in into this case I3। I3। 12 into I3। फिर दूसरा सर्किट एलिमेंट आया plus 6 रेजिस्टर, या 6I4। कहाँ पहुंच गए? P पे पहुंच गए, तो VP। तो यहाँ से आ जाएगा I4 = 2 of I3। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, सॉल्व करना है, और I4 और I3 की वैल्यू बतानी है। गेस नहीं करना है, 4 और 2 ऐसे नहीं बताना। यहाँ से I3 I4 निकालेंगे, I4 को पुट कर देंगे इसमें। तो ऐसे दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड है ये, और सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। I3 = 5/3 और हम्म, I4 = 10/3।
दोनों 5/3 आ रहे हैं। 10/3 I4. 10/3 ठीक है। I3 5/3 आ रहा है, I4 10/3 एम्पियर, करेक्ट लग रहा है। तो सी अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा पास होगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 10/3 और 12 ओम से 5/3 एम्पियर का पास होगा। सो पहले रिड्यूस करना है, फिर करंट इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसी ने सॉल्व किया? कितना आ रहा है करंट? सर 12.5। 12.5 किस वाले से? 4। 4 वाले से 12.5 आ रहा है। चेक करते हैं, ये तीनों सीरीज में है पैरेलल में है? सीरीज। नहीं, ये पॉइंट अगर P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो ये वाला पॉइंट भी P हो जाता है, ये वाला पॉइंट भी Q हो जाता है, तो P और Q के बीच 3 रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो तीनों पैरेलल में है। है ना, P और Q के बीच 2 ओम वाला रेजिस्टर, देन P और Q के बीच 4 ओम वाला रेजिस्टर, देन P और Q के बीच 4 ओम वाला रेजिस्टर, और ये कनेक्टेड है हमारा बैटरी से। इसका पोटेंशियल है 50 ओम, 50 वोल्ट वोल्ट चाहिए था। ऋषित करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes, sir. कितना आएगा 2 ओम वाले में? यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, I1 लिखेंगे तो 2 ओम वाले के अक्रॉस रेजिस्टेंस वही होगा जो PQ के अक्रॉस रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज होगा, दैट इज 50। तो यहाँ पे V अपॉन R डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो 50/2 ये आ जाएगा 25 एम्पियर, क्योंकि PQ 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, और PQ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। तो सपोज अगर यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, तो I2 और I3 कितना आएगा? नुपुर टेल मी द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3। पोटेंशियल को रेजिस्टर से डिवाइड करना है, पोटेंशियल है 50 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टर है 4, रेजिस्टेंस है 4। 12.5. 12.5 इज करेक्ट। और I3 के क्रॉस कितना आएगा? करंट I3 दैट इज 4 ओम के क्रॉस, तीसरा वाला जो है, हाउ मच विल दिस बी? 12.5. 12.5 करेक्ट। तो अगर टोटल करंट ये निकालना है कि बैटरी कितना करंट दे रहा है, तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल। सो I विल बी इक्वल टू, I इज आने वाला करंट, ये जंक्शन P पे आने वाला करंट है, और जाने वाला करंट इज I1, ऊपर गया I1, इधर गया I2, नीचे गया I3। सो I1 प्लस I2 प्लस I3। टेल मी नुपुर, बैटरी कितना करंट दे रहा है टोटल? Uh, 50. 50 एम्पियर। तो 50 वोल्ट की बैटरी 50 एम्पियर करंट दे रहा है। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 1 ओम अगर 50 वोल्ट से लगाएंगे तो 50 एम्पियर करंट बैटरी देगा, वहां से भी सेम आ रहा है। बट क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिविजुअल रेजिस्टर में करंट कितना होगा,
सो ये मेथड इजी पड़ेगा. Any other doubts in this question? तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कनेक्टेड है तो ये तीनों पैरेलल में होगा. ऐसा क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में भी किया था, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टर में भी किया था. अगर ये दोनों वायर नहीं होते तो सीरीज में हो जाता, फिर तो करंट आ जाता 5 एम्पियर. ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने सॉल्व किया क्या? टोटल करंट 0.9 आ रहा है क्वेश्चन 3 में. टोटल करंट 0.9 आ रहा है. अच्छा, क्या है, सीरीज में है, पैरेलल में है, व्हीटस्टोन ब्रिज है? um, कैसे किया, रिड्यूस किया होगा ना? तो पहला काम इसको रिड्यूस करते हैं. तो ये पी क्यू आर एस लिख लेते हैं ऐसे. तो पी और एस अगर ड्रॉ करें यहाँ पे एंड्स पे, तो पी और क्यू के बीच पहला रेजिस्टेंस है 6 ओम का. देन क्यू और एस के बीच दूसरा रेजिस्टेंस है 4 ओम का. देन पी और आर के बीच पहला रेजिस्टेंस है 9 ओम का. और आर और एस के बीच एक और रेजिस्टेंस है 6 ओम का. और क्यू और आर के बीच भी एक रेजिस्टेंस है 11 ओम का. और ये पूरा कनेक्टेड है एक्सटर्नल बैटरी से, तो बाद में भी कर सकते हैं. तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 36 आ रहा है. सो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिनेरियो. तो करंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे I1 लिख देते हैं, यहाँ पे I2 लिख देते हैं. अच्छा, ये वाला करंट तो जीरो ही होगा. I3 लिख देते हैं, I3 जीरो होगा. अगर I3 जीरो है तो I1 वाला करंट इधर से ही पास हो जाएगा और I2 वाला करंट इधर से ही पास हो जाएगा. तो फिर इसको रिड्यूस करके ऐसा बना सकते हैं. ऊपर 6 ओम और 4 ओम सीरीज में हो गया, और करंट पास कर रहा है दोनों से I1. और नीचे 9 ओम और 6 ओम ये सीरीज में हो गया, और इधर से करंट पास कर रहा है I2. सो I3 तो पता चल गया, I3 की वैल्यू जीरो है. करंट थ्रू 11 ओम रेजिस्टर इज जीरो बिकॉज व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता तो इसको I3 को जीरो नहीं लिख सकते थे. I3 जीरो है इसलिए P से Q वाला करंट Q से S वाले करंट के इक्वल है, P से R वाला करंट R से S वाले करंट के इक्वल है. इसको चाहे तो एक और स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं. तो 6 4 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 सीरीज में है तो, और 9 6 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 15 सीरीज में. तो सीरीज में जितना इक्विवेलेंट पे होता है उतना इंडिविजुअल पे होता है. तो अभी भी ये I1 और ये I2 रहेगा. इसको कनेक्ट कर सकते हैं फिर 30 वोल्ट से, और कोई ब्रांचेस नहीं है बीच में तो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. सो 30 वोल्ट और सेम, मतलब यहाँ पे अगर P और S लिखा हुआ है तो 10 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो P और X के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा. तो I1 I2 बड़ा इजीली निकल जाएगा.
River, can you tell me the value of I1 here? Potential difference है 30 और resistance है 10. तो I1 I2 कितना हो जाएगा? 30 10. Potential difference 30. You're not audible. So 3. 3 एम्पियर. यहाँ से 3 एम्पियर हो जाएगा और नीचे वाले से I2 कितना आ जाएगा? 2. 30 by 15 आ जाएगा 2 एम्पियर. मिस बैटरी कितना करंट देगा? इट विल बी गिविंग 3 + 2 5 एम्पियर करंट दे रहा होगा. सो I1 आ गया 3 एम्पियर, I2 आ गया 2 एम्पियर. सो जितना इक्विवेलेंट पे है उतना सीरीज के इंडिविजुअल पे भी होता है. तो 6 ओम और 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 एम्पियर और 9 ओम और दूसरा वाला 6 ओम के अक्रॉस करंट हो जाएगा 2 एम्पियर और 11 ओम वाले के अक्रॉस करंट हो जाएगा 0 एम्पियर. तो इसको मॉडिफाई करके अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ड्रॉ कर सकते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. देखो सर्किट्स हैं जो याद रह जाए तो ज्यादा अच्छा है. ऐसा डिजाइन दिया हो. सी पिछले वाले केस में क्या था, ऐसा ही डिजाइन था बट डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड था. ये डायरेक्ट वायर था, यहाँ पे बीच में रेजिस्टर नहीं था. तो दीज 3 आर वेयर इन पैरेलल. इस पर क्वेश्चन है, यू कैन आस्क. नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वाला तो इक्विवेलेंट बैटरी वाला लग रहा है. सो ये वाला लोड रेजिस्टेंस है, इसको आरएल ही लिख देते हैं, लोड रेजिस्टेंस आरएल. और फिर अगर मुझे इसको रिप्लेस करके एक सिंगल बैटरी लगानी है सो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ई इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट. दिस इज 4.8 ohm. दैट इज द लोड रेजिस्टेंस. तो हमारे फॉर्मूला क्या था, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2. और ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट. जब दो सेल्स पैरेलल में लगे हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. E1/R1 प्लस E2/R2. 0.6.3. यहाँ से R equivalent will be 0.2 because 1/R equivalent is 5. So E equivalent equals to 0.2. E1/R1 that is 6 by 0.6. E2/R2 that is 6 by 0.3. So 0.2 into 10 and this will be 20. 60 into 0.2, 6 into 2 is 12. तो दोनों को
अगर ज्वाइन कर दिया तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा और आर इक्विवेलेंट विल बी 0.2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कितना करंट दे रहा है ये पता चल जाएगा हमें, ये बहुत इजीली पता चल जाएगा। आई को लिख सकते हैं इक्विवेलेंट अपॉन लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। So 12 divided by 4.8 plus 0.2, करंट आ जाएगा 12/5 एम्पियर। करेक्ट है क्या कैलकुलेशन? यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 वोल्ट आना चाहिए। ये 0.2 इंटू 30 ना, ये 6 वोल्ट होगा, तो 6/5 एम्पियर करंट हो जाएगा। बट ये नेट करंट है, नेट करंट है मतलब लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ये वाला करंट है। मुझे तो हर रेजिस्टर में कितना करंट है वो चाहिए, तो ये I1 I2 और ये आई लिख लेते हैं। तो 4.8 के क्रॉस 6/5 एम्पियर रेजिस्टेंस करंट है। फिर I1 I2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? I hope I am not going too fast. पूरब यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मुझे I1 I2 फाइंड आउट करना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। मुझे किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ भी यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को P लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट P लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट P लिख लेता हूँ। सो यहाँ से आने वाला करंट कितना है? I1 प्लस I2। निहार कैन यू टेल मी किरचॉफ से फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं एट P? So basically it's like जो current है, so it's like, तो फिर वो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तीनों पार्ट्स में। नो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पूछ नहीं रहा, आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे क्या रिलेशन लिखेंगे। P जंक्शन है, Oh, I1 I2 I3 और I तीन करंट है। so तो फिर मतलब इससे ये I1 प्लस I2 है, ये माइनस ये I1। I1 प्लस I2 माइनस I1। आने वाले करंट कितने हैं? P जंक्शन की तरफ कौन कौन सा करंट आ रहा है? मतलब पी के तो यहाँ पे तो ये आ रहा है I1 एंड I2। I1 एंड I2, तो आने वाला करंट हुआ I1 प्लस I2 हाँ और जाने वाला करंट कितना हुआ? सर, आए है ना। आई जा रहे हैं। हाँ ओके, सो I1 प्लस I2 को लिख सकते हैं 6, कितना आया था करंट? 6/5 एम्पियर। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया, I1 प्लस I2 इज 6/5 एम्पियर। तो ये यूज कर सकते हैं। और अनदर थिंग वी कैन डू कि किरचॉफ सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं और किसी एक लूप में घूम सकते हैं, तो वहां से I1 I2 शायद डायरेक्टली आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लूप में घूम रहा हूँ, ये वाला लूप, तो हम लिख सकते हैं, विल टेल मी, अपूर्व टेल मी, इस लूप में घूम रहे हैं तो क्या लिखेंगे? किरचॉफ सेकंड लॉ, P पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं।
VP, then सर माइनस I2 माइनस I2 नहीं ना, I2 तो करंट है। पहला सर्किट एलिमेंट कौन सा है पहले? ये बैटरी जीरो है। पॉइंट हाँ तो पहले हाँ बैटरी का एक तो -6 -6, वोल्ट। फिर रेजिस्टर आया, करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं या साथ साथ जा रहे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। प्लस। तो कितना लिखेंगे? 0.3 I2। फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर अगला सर्किट एलिमेंट आया, लोड रेजिस्टेंस। करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस प्लस कितना? प्लस 4.8 इंटू आई। आई गिवन है 6/5, सो डायरेक्टली लिख देंगे 6/5 और घूम के पहुंच गए VP। तो यहाँ से VP VP कैंसिल आउट हो गया, I2 डायरेक्ट निकल जाएगा। सो 0.3 I2 इक्वल्स टू 6 minus 48/10 into 6/5। तो I2 आ रहा है 0.8 एम्पियर एंड 6/5 कितना होता है? दैट विल बी 1.2। तो यहाँ से I2 को इधर पुट कर देंगे, I1 plus I2 इज 1.2 एम्पियर। यहाँ से I1 आ जाएगा 1.2 माइनस I2, दैट विल बी, इसको इधर पुट करेंगे तो दैट विल बी 0.4 एम्पियर। तो ऐसा I1 और I2 आ जाएगा लूप में घूम के किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करके। तो 0.6 एम्पियर से 0.6 ओम से जो करंट है दैट इज 0.4 एम्पियर और यहाँ से 0.8 एम्पियर। Mehul, any questions here? No, sir. Okay. ओके, और किसी के पास डाउट है? बुक सॉल्व किया हो या वर्कशीट सॉल्व किया हो एंड यू फाउंड एनी डाउट, यू कैन आस्क नाउ। नेक्स्ट क्लास से मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है एंड आई रियली लाइक दैट चैप्टर मैग्नेटिज्म, बिकॉज बहुत ही नए नए फिनोमेना सुनने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी तक ऐसा लगता है कि हाँ सर्किट एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म में तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होता है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वहाँ पे। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक वायर दूसरे वायर को रिपेल करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थिंग्स लाइक दैट। एरोप्लेन मूव करेगा तो उसके टिप के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनल्स है उसमें। तो उससे पहले किसी को कोई क्वेश्चन है बुक से या फिर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। वर्कशीट वर्कशीट की डेडलाइन दी है मैंने।
किसी को याद? गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में डाउट है? हाँ मतलब उसके न्यूमेरिकल में। अच्छा, टेल मी कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिनट टेक्स्ट बुक लेके। हाँ, तो इस चैप्टर की वर्कशीट जो है 20 नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब ये जो कमिंग फ्राइडे, करंट की वर्कशीट 28 तक सबमिट कर देनी है होल्डर पे। 28 तक टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बिकॉज अगर कोई डाउट हुआ तो 28 को पूछ करके फिर वो सॉल्व करके सबमिट कर दिया। इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हो तो 27 को ही सॉल्व करना है। पहले कंप्लीट हो गया सॉल्व तो पहले ही सबमिट कर दे रहे। सो 28 May, that's the deadline for submitting the worksheet, uploading the worksheet. And this is for all of you. पिछला वाला वर्कशीट सबने सबमिट कर दिया था। दैट वाज वर्कशीट आई थिंक 5, नो 5, हाँ 5। वर्कशीट 5 वाज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। मैं वो सबमिट किया था ये वाला वर्कशीट, पिछला वाला। सर कर लिया, पर मेरे को पता नहीं था कि अपलोड करना था ड्राइव पे। अभी अच्छा, कर देता हूँ आफ्टर। हाँ, यू व्हेन यू ओपन द ड्राइव तो वहाँ पे वर्कशीट अपलोड करके एक फोल्डर होगा, तो वहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है। Nupur, have you uploaded worksheet 5? Yes, sir. ठीक है, वर्कशीट 6 भी फटाफट अपलोड कर देना है। एंड नुपुर एंड मेहुल, यू हैव टू कंप्लीट इट, जितना जल्दी कर ले उतना बेनिफिट है। नेक्स्ट वीक आई एम ट्राइंग टू कवर अप योर, आई विल ट्राई टू कवर अप योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। सो सर गॉस लॉ में न्यूमेरिकल में 4th वाला। वर्कशीट में या नहीं बुक में? नहीं, टेक्स्ट बुक में। आई डोंट नो इफ यू हैव द सेम बुक और नॉट, आई विल चेक इट आउट। So the question here is an isolated conductor of any shape has a net charge of plus 10 microcoulomb. ये वाला? यस। Okay. So net charge is given as plus 10 microcoulomb, and inside the conductor there is a cavity. कैसा भी cavity ले सकते हैं, and within which there is a point charge of plus 3. So यहाँ पे जो charge होगा वो plus 3 होगा. That is given. Plus 3 conductor में नहीं है, cavity में. What is the charge on the cavity wall? तो plus 3 microcoulomb जो है, लेट अस सी कितना अट्रैक्ट करता है। तो चार्ज जो अट्रैक्ट होगा प्लस 3 से, वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। सो गॉसियन सरफेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि सरफेस के बहुत ही क्लोज है, जस्ट सरफेस को इंक्लूड कर रहा है।
ये मेरा अंदर वाला गॉसियन सरफेस है, कॉल इट गॉसियन सरफेस ए। तो जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो मैं Q ले लेता हूँ या Q1 ले लेता हूँ, कॉल इट Q1। सो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में ले लिया तो वो 0 ही आएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो गॉस लॉ यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस 3। इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक तो Q1 है चार्ज जो इंड्यूस हुआ है 3 माइक्रोकूलम की वजह से, और एक 3 है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है, E is 0 at every point on Gaussian surface. That means ये वाला लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, so Q1 plus 3 0 हो गया। That means Q1 will come out to be -3 microcoulomb. फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अच्छा, सेकेंड पार्ट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि नेट चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब है, तो अगर बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आएगा तो ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा, तो बाहर वाले पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन करके एंड विल कॉल इट Q2। यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नेट चार्ज कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि चार्ज लीक नहीं हो रहा। कॉल दिस चार्ज एज Q2, so Q1 plus Q2 will be equal to net charge फ्रॉम। एग्जाम में ऐसा लिखना होता है कि हाँ, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे अगली बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं कि +3 है तो -3 लिख देंगे, तो प्रॉपरली लिखना है कि यूजिंग गॉस लॉ हमने गॉसियन सरफेस बनाया। यहाँ से Q2 बड़ा आसानी से आ जाएगा, दैट विल बी Q net minus Q1। Q net is 10 माइक्रोकूलम एंड दिस विल बी -3 माइक्रोकूलम। तो ये 13 माइक्रोकूलम आ रहा है, 13 इसका। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? No. एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड? अच्छा हाँ, एक और चीज, ओके, Mehul was saying something, just tell me, then So, sir, I had sent you that question. उसमें पूछा है that what if galvanometer and battery are interchanged? हाँ, तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी इंटरचेंज करेंगे और सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सेम ही रिजल्ट आता है। Means, तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी एक्सचेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। मीन्स थिंक ऑफ इट लाइक दिस, व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्टली बना रहा हूँ, मीटर ब्रिज नहीं बना रहा मैं। दिस इज R1, R2, R3, R4। तो पहले बैटरी ऐसे कनेक्टेड था, कॉल इट टर्मिनल P एंड Q के अलॉन्ग, और जो गैल्वेनोमीटर था वो यहाँ पे कनेक्टेड था, कॉल इट R और S के अलॉन्ग। एक्सचेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैटरी आ जाएगा और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। तो R और S टर्मिनल हो गए, R और S टर्मिनल्स हो गए,
मैंने बैटरी को निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, बैटरी को बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं, बस वायर स्ट्रेच कर रहे हैं, कंडक्टर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर आर और क्यू के बीच देयर इज वन रेजिस्टेंस R2, आर और पी के बीच एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं P, R1, and between P and S there is another resistance that is called R3, and between S and Q there is another resistance, इसको हम बोल सकते हैं R4। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो कहाँ पे कनेक्टेड है? P और Q के बीच, तो गैल्वेनोमीटर will be here। So earlier the Wheatstone bridge condition was R1 R4 equals to R2 R3, and now again it's the same, it will be R1 R4 equals to R2 R3। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा बैलेंसिंग लाइन।